वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear parents, feeling really very great to see you all sitting here. We have just given a call and all of you are being here. Thank you for all. Thank you that you people are appreciating us and cooperating us and supporting us. Without any further delay, let's kick-start this program and inaugurate this program with a beautiful Qirat of Zunaira Kausar from grade 5. I would like to invite Zunaira Kausar onto the dais to come here and to recite and enlighten our minds with the beautiful recitation of Quran. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ज़ुनैरा कौसर है। मैं 5वीं जमात की तालिबे इल्म हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फातिहा मक्किया। सूरह फातिहा मक्की है। सूरह फातिहा में 7 आयतें और 1 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल यासीन मक्किया। सूरह यासीन मक्की है। सूरह यासीन में 83 आयतें और 5 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। लितुनज़िर क़ौमन मा उनज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फ़ी अग़नाक़िहिम अग़लाला फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन فأغشيناهم فهم لا يبصرون। وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم
يعمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Jazakallah Zunaira Kausar, mashallah, that was marvelous. She got nervous, but yet she did that. Congratulations, dear. That was melodiously recited by Zunaira Kausar. Now I would like to call Muhammad Faisal and Muhammad Ibrahim from grade 5 to come here and to recite a naat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला जो करते रही है ये बात सदा ऐसे खुशबू चमन के गुलों में कहाँ ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ जो नदी के पसीने में मौजूद है हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी तो हम मदीना न जाए कहीं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं ओ जन्नत मदीने में मौजूद है. Because we have few more programs. Now I would like to call Asiya, Sheenaz and Amina Laiba from grade 2 to come here and to recite one more naat. Quickly. नाते शरीफ मदीना 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 हर गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे हर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे ना इतराओ ज्यादा चांद तारा
teachers, all the staff that is behind me, they stand behind me as a backbone, who always there to work hard and support me in all my work. So, teachers, no doubt these few teachers are sitting here, few teachers, they are managing their classes. A big round of applause for all of you teachers and a heartfelt welcome to all of you. Without whom, it is not possible. Special mention if she is listening to me, I would like to give my heartfelt welcome and thanks to Tabrez Tabassum ma'am. Tabrez Tabassum ma'am, she is my senior and I always admire her as my senior. I consider her as the most experiential person in her life. She has a working experience into this profession of 18 years. She has a total of 18 years of experience into this profession, having worked in many of the reputed schools such as Jain Public School, KV School, and she is there with me. So a special mention for Tabrez Tabassum ma'am. She is really coming here waving her hand. A heartfelt thank to her. All my preschool staff, those who are there, I would just name them: Javeria ma'am, Jabeen, Suzanne, Zoya, Lamia, Shahnaz, Muskan, two Muskans are there, Sagira, then all Suzanne, Shafia. A big heartfelt thank and welcome to all of them. Without whom, we couldn't have accomplished this journey. And most important of all my little children, whom I always consider as my spiritual children. I share a great bond and relationship and great affection with them, all my children of Brainy Star School. A very heartfelt thanks to you all. Okay? Jazakallahu khair. With this, now let us begin our program. We will start up with our quiz program. Let's begin this program. I'm going to announce the names. Let me see whether these parents who have already given the names, whether they are available here or not, whether they are being here or not. I'm going to call them one by one. Akifa and Atifa parents and Razaul Haq. Sir is there here? Okay. Aksa Banu, she is in M1. Sumaya Banu, are you there here? Muhammad Sheikh Hamdan and his mother is Arshia Khanam. Is she here? Are you there, ma'am? Arshia Khanam? Is she there? Oh, okay, fine then. Then Shima from Montessori 1 and her mother name is Humaira Banu. Just raise your hand if you are here. I don't think so she is there. Okay. Raisa Hussein's mother, Reshma. Fine. Raisa Zainab's mother, Shahista ma'am. Are you here? So you are going to be here. Orhan Ghazi from Montessori 2. Shahzan sir. You are there. Huzaifa's mother, M2 Huzaifa's mother. Sorry that I didn't write your name mentioned here. Are you here? M2 Huzaifa Ahmad's mother. Okay. Muhammad Malik Rihan, grade 1, and his father name is Nayaz Pasha. He is waiting from since 9 o'clock, I guess. Okay. Muhammad Faizullah's mother, Bibi Fatima. I think she'll join little later. Aina Marzia from grade 1 and her mother Sumaya. Then Nazira Taranum from grade 2, her father Abdul Aziz. Fine. Sayyid Saqib's mother from grade 3, Sabiha Naz. You're there, ma'am. Wafia Harmain's mother, Hajira Tabassum, ma'am. You're participating, right? Zunaira Kausal's mother, Tasina. You're there. Muhammad Hanzala's mother, Rahmatun Nisa. Okay, ma'am. Then Ismail Zaman's mother from PIP, Mahatab Kausar. You're there. Sayyid Saklain's mother, Nazia Banu. You're there. Then Muhammad Rayyan 6, Kajal. She is there. Sayyida Rimsha's mother, Salma Sharif. You're there. Ammar Amiri's parents. M2 Ammar Amiri. Okay. Ikhra Maryam from M3. And Abdul Rahman's parents, Salma ma'am and Urwa. Okay.
And 6th standard Moin Zainab, Moin's mother. 6th Moin's mother. Okay. So we have only 4 gents and rest of them are ladies. So we will just start up the program with the gents. I'll finish it off with the first round and second round with the gents. Then we will start with the ladies. May I request Razaul Haq, Mr. Razaul Haq, Nayaz Pasha, Abdul Aziz, Shahzan sir to come onto the stage. Moin, you give the badges to Moin, he will stick to the okay? Please come on to the stage. Just remind me if I'm missing any of the gents. I guess we only have 4 here. Then majoritatively we have women empowerment, women. Okay. You take your position over there, sir. 4 of you. Please take your position. I'll mention special mention about you. Zaid Nagada. One of you sit here, one of you and 2 of you please join here. On each stage 1 member can participate for these kinds of programs, right? During our times, if it has to be, we would have somewhere else, right? So they have come forward, it shows their talent, caliber and their braveness, right? So clapping should go on. Razaul Haq, then Shahzan, Muhammad Shahzan I think. Muhammad Shahzan Tabassum, and then Nayaz Pasha and Abdul Aziz. So here we have 2 judges from our school. As I have already mentioned, special mention Tabriz Tabassum ma'am. So she is being the judge. She is gonna mark down the points, whatever these people are going to score. And also we have one more judge with us, Rafia ma'am, who is the class teacher of grade 1. Really down to earth person, a very humble person. Jazakallah ma'am for being the guest of this program. Okay, fine. I'll just tell you the rules and regulations of this game. See, this quiz program, we have 3 stages. Each stage has 2 rounds. 1 round, that is general round we say. Then we have a buzzer round. Then in second stage, we have a general round as a rapid fire game. In the first round, options will be given. In the second round, options will not be shared. Options will not be given. Questions will be asked. Options will not be given. Even in the third stage, questions will be asked, but no options will be given to them. As I go on in detail, I'm going to tell you the rules and regulations. So let us start the first stage where I say as a very simple and easy stage where I can boost their energy and their confidence, where they can feel that I can say I'm very good at Islamic knowledge, right? So the first stage is considered to be a very easy one. It has 2 rounds, general round and a buzzer round. And here you will have one question will be asked to all of you. Options will be given. You have to choose and say the correct answer. If you say the correct answer, 10 points will be given. Suppose one of the team, if they fail to say the answer, the same question will be passed to the second. Likewise, it will be passed vice versa. So whosoever manages and say the answer will get 5 points. If wrong answer, -5. Okay? How many Makki surahs are there in Quran? Quran में Makki सूरत कितने हैं? Options 86, 28, 114. 86. It is the right answer. 10 marks for Muhammad Shahzan sir. The question posed to Nayaz Pasha sir. Which prophet could interpret dreams? कौन से prophet अलैहि सलाम थे जिनको ख्वाब का इंटरप्रिटेशन, ख्वाब की ताबीर बताया करते थे? आपके ऑप्शंस हैं प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम. प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम राइट आंसर. प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम जो ख्वाब की ताबीर बताया करते थे. सो 10 पॉइंट्स फॉर नयाज पाशा सर. The 13. Which is the smallest surah in Quran? This question is for Abdul Aziz sir. Surah Kausar, Surah Nas, Surah Falaq. Surah Kausar. Anyhow, you need now.
Surah Kausar is the right answer. So 10 points for Abdul Aziz sir. Let me mention one more thing. The person who is sitting here, he is Zalim and he has a great knowledge when it comes to Islamic studies and all. So I don't know how you people are going to manage and fight with him. Okay? So the next question for team number 4. What is the Islamic term for unlawful or forbidden actions? इस्लाम में जो इस्लामिक टर्म जो चीज़ें हलाल नहीं है उसे क्या कहते हैं, जो चीज़ें जायज़ नहीं है उसे क्या कहते हैं? हलाल, हराम, मकरूह। हराम कहते हैं। हराम, हराम इज द राइट आंसर। सो 10 मार्क्स फॉर दिस। अंकल ये भी डाल दो क्योंकि उनको भी होना। ऑन ऊपर रीच ना। Next. This question is from Muhammad Shahzan sir. What is the name of the festival that marks the end of Ramadan? रमजान के खत्म होने पर जो फेस्टिवल मनाई जाती है वो कौन सी है? ईद उल अजहा, ईद उल फितर, मौलूद। ईद उल फित्र। ईद उल फित्र is the right answer. So 10 marks for Shahzan sir. Nayaz Pasha sir. Which direction do Muslim face while offering prayer? जो मुस्लिम प्रेयर करते वक्त कौन सा डायरेक्शन फेस करते? अल-अक्सा, काबा, अल-फतह। काबा। काबा, काबा is the right answer. Next question to Muhammad Aziz sir. Which surah is called the mother of Quran? कुरान का जो मदर ऑफ कुरान किस सूरह को लक़ब दिया गया है? सूरह बकरा, सूरह मरियम, सूरह फातिहा। Give the mic. Mother of the Quran? सूरह मरियम। Wrong answer. So this question is passed to him if sir can answer. Mother of the Quran जिस सूरह को कहते हैं वो कौन सी सूरत है? सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह मरियम। सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा is the right answer. So 5 points, bonus points. So he doesn't get any points in the second round. आपका क्वेश्चन अब फिर से. Which prophet is known as the prophet of father of all prophets? Prophets में किसका लक़ब father of all prophets कहा गया है? आदम अलैहिस्सलाम, इद्रीस अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। Hazrat Adam alayhi salam. So 10 points for this one. So second round we have completed 2 rounds. Now you here I'm going to ask the question. Whosoever rings the bell, buzzer first, we will ask the question to them. Okay? I need one more. Almost you come and stand here so that we can get to hear those who will buzzer the first. Same 10 points for answers. Fine. Which prophet was betrayed by his own brothers? वो कौन से नबी थे जिनको अपने भाइयों से धोखा मिला था? इमरान अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में धक्का दिया था. So 10 points for Razaul Haq sir. Okay. Next question. Arabic word. What is the Arabic meaning of the word earth? अर्थ का मीनिंग क्या है? अर्थ, 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 हाँ. आप बोलेंगे? अर्थ से नहीं, जमीन है. Earth, land, earth. 10 points for this person. Earth. Okay, sorry. Allah. Okay. What is the Arabic term Siratul Mustaqim means? Siratul Mustaqim ka meaning. Siratul Mustaqim ka meaning. Path, the right path. Shahzan sir gets 10 points. In Hajj, traveling 7 times between Mountain Safa and the Mount Marwa is called
ओके सो हज करते वक्त जो सफा और मरवा के दरमियान का जो सफर है इसे क्या कहते हैं? सही। सही, राइट आंसर, माशाल्लाह। वो कौन सी सूरत है जो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है? We did it. सूरह तौबा। Surah Tawbah is the right answer. Shahzan sir will get 10 points. Next, which angel is responsible for blowing the trumpet on the day of judgment? वो कौन से एंजल हैं जो कि सूर फूकेंगे? क़यामत के दिन कौन से एंजल सूर फूकेंगे? I think he buzzed it first. Before that itself. So आपका आंसर सूर फूकने वाले एंजल का नाम एंजल फरिश्ते का नाम। टिक टिक 1 2 3 4 5 तो टाइम इज अप। You did it, okay. मीकाईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। Hazrat Israfil alayhi salam is the right answer. So plus 5 points to him. Okay. The last question of this round. और कौन से नबी हैं जिन्होंने रेड सी में रास्ता बनाया था? मूसा अलैहिस्सलाम। Musa alayhi salam. Musa alayhi salam was a prophet who is known to part the Red Sea, right? So Shahzan sir will get 10 points. So we are going to end up with this session. So the first stage is completed. What is the mass? I'll just give her a time so that she calculates the points and let me know. Second stage. Will you say? Okay, she is giving me the paper. So result इस तरह से है। रज़ाउल हक सर के मार्क्स जो हैं 25 हैं, मोहम्मद शाहजन सर के जो हैं 30 पाए हैं, नयाज पाशा सर के 20 एंड अब्दुल अजीज सर के 10 हैं। सर इस बार आपको before last year, you know, we have organized the same kind of quiz program जहाँ पर अब्दुल अजीज सर जेम्स की टीम में फर्स्ट प्राइज लेके गए थे। यहाँ से अब्दुल अजीज सर ये वही बैठे हुए हैं जो कि फर्स्ट प्राइज इन्होंने लिया था। So better luck next time. So now I'm going to have the second round with these two people. Okay, तबस्सुम मैम, I'll just send them. नयाज पाशा सर आपको जाना होगा, हाँ आप दोनों के बीच में ये कर लेंगे। Okay now, do you need it? वो कौन सी सूरत है जो क़यामत के दिन अल्लाह से झगड़ा करेगी? ऑप्शन, ये क्वेश्चन आपके लिए है, नो बजर राउंड। पहला फर्स्ट क्वेश्चन शाहजन सर को, कौन सी सूरत है जो क़यामत के दिन अल्लाह से झगड़ा करेगी? सूरह यासीन, सूरह मुल्क, सूरह कहफ। सूरह मुल्क। सूरह मुल्क इज द राइट आंसर। 10 मार्क्स फॉर शाहजन सर। अब आपके लिए, कौन से नबी अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। 10 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन शाहजन सर, 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। कौन सी इबादत है जो कबूल होने में शक नहीं है? नमाज, दरूद, हज। वो कौन सी इबादत है जो कबूल होने में शक नहीं है? आपके ऑप्शंस नमाज, दरूद, हज। नमाज। रॉन्ग आंसर, दरूद। दरूद, क्योंकि नमाज बेशक अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर हमारी नमाज खुशू से पढ़ी जाए तो अल्लाह कबूल कर सकता है, या फिर वो नमाज हमारे मुंह पे मार दी जाएगी, राइट?
सो दरूद ही एक ऐसा ये है जो कि बिना कोई शक के अल्लाह ताला और हुजूर कबूल करते हैं। तो आपका राइट आंसर +5 मार्क्स। तबस्सुम मैम, दिस इज अ पास क्वेश्चन, 5 मार्क्स। अब आपका ही क्वेश्चन, वो कौन सी तस्बीह है जिसे बोलते वक्त मुंह खुला रह जाता है? ऑप्शन अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आपके ऑप्शन ये हैं, वो कौन सी तस्बीह है जिसे बोलते वक्त मुंह खुला रह जाता है? ऑप्शन ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह इज द राइट आंसर, 10 मार्क्स। इन योर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड, कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरह कौसर, सूरह मुल्क, सूरह बकरा। सूरह बकरा। Surah Baqarah is the right answer. The last question of this stage, the second stage. कुरान मजीद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम किस सूरत में इनका जिक्र आया है? सूरह यासीन, सूरह कहफ, सूरह बकरा। सूरह बकरा। Surah Baqarah is the right answer. Okay. Now, stage 2, we are moving on with rapid fire round. रैपिड फायर राउंड आपको ऐसा है कि आपको 5 क्वेश्चन पीछे पीछे कंटिन्यूसली जल्द अज जल्द पूछी जाएंगी, जिसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आपको उसका आंसर देना होगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 5। सतह जमीन पर पहली मस्जिद कौन सी है? काबा। हजरत इस्माइल और हजरत इसाक अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या ताल्लुक था? भाई। 1 आंसर। कुरान पाक की कितनी मंजिलें हैं? 7। राइट आंसर। पुलिस का निजाम किस मुतारिफ ने किया था? किस सहाबा ने किया था? उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत राइट आंसर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सबसे आखिर में कौन सा जानवर सवार हुआ था? फर्स्ट। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र सूरह अल बकरा में कितनी मर्तबा आया है? 13। माशाअल्लाह, राइट आंसर। So out of 5, he has answered 4. Okay, Jazakallah sir. Now, same 5 questions. मुसलमानों के 2 असल हथियार कौन से हैं? एक नमाज, हाँ, दूसरा रोजा। नो, सब्र और तकवा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम क्या है? बर्रा। राइट आंसर। 1 रॉन्ग 1 राइट। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की कितनी उम्र हुई थी जब उनकी इंतकाल हुआ था? वालिद का पैदा होने से पहले इंतकाल हो गए थे वालिद का। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की इंतकाल किस उम्र में हुई थी? मतलब वो कितने उम्र के थे जब उनका इंतकाल हुआ था? अच्छा, उनके वालिद का इंतकाल। उनके वालिद का नाम इंतकाल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की उम्र कितनी थी जब वो इंतकाल फरमाए थे? 25। रॉन्ग आंसर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल कितने चाचा इस्लाम कबूल किए थे? 1 2। राइट आंसर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दूसरी मुलाकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब और कहाँ हुई थी? दूसरी मुलाकात हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से घर में ही हुई। हज़रत उम्मे हानी के घर में हुई। हज़रत मैं बोल देती हूँ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी मुलाकात 18 रमजान बरोज जुम्मा गारे हिरा में हुई थी। ओके, तो सो रॉन्ग आंसर। लास्ट क्वेश्चन, मदीने का पहला नाम क्या था? यस्रब। ओके, द राइट आंसर। फाइन। So I think I have asked 5 questions to him. Out of it, 3 he has answered right and 1 is wrong. Okay? 3 wrong, 2 is correct. Okay, fine.
Okay. So this round we are ending up here. The third round, I'll just take up. से this stage जहाँ पे आपको थोड़े मुश्किल सवाल पूछे जाएंगे, तो आपको सही आंसर देना होगा। तो इस बेस पे इन लोगों के मार्क्स डिसाइड होंगे तबस्सुम मैम, बेस्ड ऑन सेकेंड स्टेज राउंड के मार्क्स और थर्ड स्टेज राउंड के मार्क्स, इस बेस पे इनका विनर और रनर अप। ओके फाइन। उर्दू में वो कौन से लीडर है जिनका नाम सूरह अल कहफ में पूछा गया है? और ये आपका, दिस इज नॉट द बजर राउंड, नहीं, ये फर्स्ट राउंड है जो कि क्वेश्चन मोहम्मद शाहजन सर का है। वो कौन से ट्रैवलर और लीडर है जिनका जिक्र सूरह अल कहफ में आया हुआ है? हजरत जुल्करनैन। हजरत जुल्करनैन, माशाअल्लाह, वेरी गुड सर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, वो कौन सी सूरत है कुरान पाक की, वो कौन सी सूरत है जिसमें सब्र का ज्यादा जिक्र किया गया है? वो सूरत जिसमें पेशेंस, सब्र का ज्यादा जिक्र किया गया है। सबर का ज्यादा जिक्र। This question can be passed. So, which surah highlights patience and trust in Allah during trial? अल्लाह ताला जब मुश्किलात देते हैं तो पेशेंस रखना, इस बात का सबसे ज्यादा जिक्र सूरह अल कहफ में आया किया गया है। सूरह अल कहफ में पेशेंस, सब्र के बारे में ज्यादा तज़किरा किया गया है। तो नाउ वी डिडंट से नो पास क्वेश्चन, नो मार्क्स। नेक्स्ट शाहजन सर क्वेश्चन, I can ask you in English now. What is the name of the place where Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam made his night journey? वो कौन सा नाम है जहाँ पर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रात की जर्नी की थी? बैतुल मुक़द्दस मीराज नाम है। मक्के से बैतुल मुक़द्दस गए थे, वहाँ से सिदरतुल मुंतहा। नहीं, ये नाइट की जर्नी मेराज का जो है वो रजबुल मुरद के महीने में है। इन्होंने एक और नाइट जर्नी एक जगह पे क़याम किया था। आप चाहे तो मैं आपको ऑप्शंस बोल देती हूँ, अल कुद्स, अल अक़सा, अल इसरा। वो कौन सी जगह है जहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में क़याम किया था? अल-अक़सा। अल-असरा। नहीं, अल अक़सा इज द रॉन्ग आंसर। अल-असरा। Al-Asra. Al-Asra is the right answer. So 5 points for him. It was a past question to him. I'm going to add a few difficult questions. प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबा को अपॉइंट किया था ताकि वो यस्रिब जाएं और इस्लाम फैलाएं और इस्लाम की तालीम दें, इस्लाम फैलाएं, इस्लाम के फंडामेंटल्स लोगों को बताएं? वो कौन से सहाबा थे? ऑप्शन नहीं। हाँ, सहाबा का नाम। ऑप्शन है। ऑप्शन: अबू उबैदा, काब बिन मलिक, मुसाब बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला। मुसाब बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु is the right answer. Last question I'm going to ask for Shahzan sir. In which two surahs of the Quran is the night journey and the ascension to the heavens mentioned? जो आप बोल रहे थे कि मेराज का जिक्र किस सूरह में आके है? ऑप्शंस: सूरह अल कुरान, अन-नूर, सूरह नूर में, सूरह क़द्र में, सूरह अस्र, सूरह अस्र में। सूरह अस्र इज द राइट आंसर। अब आपका लास्ट क्वेश्चन इस राउंड का, which angel has never smile was created? Okay, this one is where not so. Okay, I'll ask you another question. Sorry for that one. वो कौन सी सूरत है जिसमें क़यामत के बारे में जिक्र किया गया है? सूरह तौबा, सूरह मुनाफिकून, सूरह अंबिया। क़यामत के बारे में या क़यामत कब आएगी, कब नज़दीक होगी,
कुरान में वो कौन सा सूरत है, कौन सी सूरत है जिसमें इसका जिक्र किया गया है? सूरह तौबा, सूरह मुनाफिकून, सूरह अंबिया। सूरह अंबिया। Surah Anbiya is the right answer. Okay, so you have calculated the points now. Now the rapid fire round, Tabassum, I'll start. You keep on counting the marks. Later we will announce the winner and runner-up. Okay? Fine. This is a buzzer round, and you people have to buzzer. ओके, सो वो कौन से सहाबी हैं जिनको सैटन शैतान ने भड़काया था और आज भी वो भड़काता रहता है? आपके ऑप्शन: हजरत साद बिन मौत, हजरत तलहा बिन उबैदा, हजरत उमर बिन खत्ताब। वो कौन से सहाबी थे जिनको शैतान ने भड़काया था? साद बिन मौत, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। साद बिन हजरत तलहा। रॉन्ग आंसर। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शैतान ने भड़काया हुआ था और आज भी कुछ लोग हाइपोक्रेट इसे ये करते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। शैतान तो उमर बिन खत्ताब को देखकर भागता था। Who is the companion whom Satan changes? जितने भी हैं हदीस में, शैतान जब भी उमर बिन खत्ताब को देखता तो दूसरी गली पकड़ लेता था। वो तो डरता था हजरत उमर बिन खत्ताब से। Okay, but I read. Okay, I'll ask you another question. In which surah of Quran is Zulqarnain mentioned? वो कौन सी सूरत है जिसमें जुल्करनैन का जिक्र किया गया है? सूरतुल कहफ। सूरतुल कहफ is the right answer. यरमुक जंगे यरमुक किन लोगों के दरमियान की गई थी? मुस्लिम और किन के दरमियान? जंगे यरमुक मुसलमान और किसके दरमियान की गई थी? यहूदियों के दरमियान। राइट आंसर। विच सूरा, वो कौन सी सूरत है जो टाइटल उसका जो शुरू है, उसका जो शुरुआत का जो टाइटल है उसी टाइटल के साथ वो सूरा खत्म होती है? विच सूरा ऑफ कुरान एंड्स विद द सेम नेम एज इट्स टाइटल? जो शुरुआत उसकी जो जिस वर्ड से होता उसी वर्ड से वो सूरत खत्म होती है। ऑप्शंस आर नॉट अलाउड टू से, बट आई कैन से सूरह फातिहा, सूरह अल फलक, सूरह अल माउन। अल फलक। सूरह आखिरी में अल माउन। अल माउन। सूरह अल माउन इज द राइट आंसर। सूरह अल माउन वो सेम टाइटल है और अल माउन से सेम खत्म होती है। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन। सूरह कहफ में अशहाबे कहफ के साथ वो कौन से जानवर का जिक्र किया गया है? कुत्ते का। राइट आंसर। द लास्ट क्वेश्चन। सूरह अल इमरान में कौन से गज़ब का जिक्र किया गया है? ग़ज़वा बदर। आपके ऑप्शन? ओके, ग़ज़वा बदर आप बोल दिए। सो इट इज द राइट आंसर। ग़ज़वा बदर इज द famous ग़ज़वा which is mentioned in Surah Al Imran. Right answer. So shall we end it up here? 5 questions I think I have asked. So you count the marks and we will announce the winner and the runner-up later. Okay? Jazakallah sir. Thank you so much for coming here and participating in this program. Jazakallah. Now we have more ladies. So we will call ladies. I'll tell you how I'm going to do because I have many with me. बैठेंगे और आंसर देंगे। उन दोनों के बीच में फिर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर बुलाती चलूँ सुमैया बानो, आप स्टेज पर आ जाएं। सुमैया बानो जो कि अक्सा बानो की अम्मी हैं, मोहम्मद शेख हमदान की अम्मी अर्शिया खानम, शीमा की अम्मी शायद नहीं आके हैं, शीमा की अम्मी हुमेरा बानो कभी नहीं आके थे, रईसा जैनब के अम्मी शाहिस्ता,
शाहिसा मैम आके हैं। हुजैफा अंबर की अम्मी भी शायद नहीं आके हैं। ओके। मोहम्मद फैजुल्लाह की अम्मी बीबी फातिमा, नो। आइना मर्जिया के सुमैया मैम आप स्टेज पर आ जाएं। सैयद साहिब के मदर सबीहा नाज जी, ओके सबीहा नाज आप आ जाएं। और भी है, मैं बुला देती हूँ। वाफिया हरमैन के अम्मी हाजिरा, here we have two, here two, 3 more I'll call on to the dais. ओके, यहाँ पे एक थोड़ा अनाउंसमेंट है। किसी की गाड़ी एक्टिवा है जिसका नंबर KA06H1638 है, V1638, व्हाइट कलर एक्टिवा जिस किसी की भी है, थोड़ा वहाँ से पार्किंग से वहाँ से हटाकर इधर थोड़ा पार्क कर दें। ये जिस किसी की भी व्हीकल है थोड़ा आप इधर। और एक व्हीकल नो, I think I have called Hajira Tabassum ma'am, Wafia's mother. Then Zunaira Kausar's mother, Tahsina Kausar. Sayyid Saklain's mother, Nazia. And then one more, Sahib's mother, Sabiha Naz. Okay. Muhammad Hanzala's mother, Rahmatun Nisa. Next order. Okay. So, Tabassum ma'am, I'm going to give the mic to them. They'll announce their names. You just write them. Give the mic to them. Up for one more, it's needed. Sayyid Aisha Naz ke parents. Rahmatun Nisa is coming. Okay. Then Aisha Naz, hold on for a moment. Second round के लिए. अब थोड़ा अपना नाम बोल दें। तबस्सुम मैम, you are making सुमैया, then Shaista, सुमैया, M1 एक्सा बनो, आपका नाम अर्शिया खानम, अर्शिया खानम, अर्शिया। जुनेरा कौसर, जुनेरा कौसर की अम्मी तहसीना कौसर, तहसीना कौसर। मोहम्मद हंजला's mother, रहमतुन निसा। सैयद साकिब मदर, नाजिया बानो, नाजिया बानो। वाफिया हरमैन मदर, हाजिरा तबस्सुम, हाजिरा तबस्सुम। The first round, as we have many ladies, so I'm going to ask each one of you. So the first round, stage 1, it's a general round where I'm going to ask question to all of you. Each participant will get a chance to say answer. Same like if you are unable to answer it, the question will be passed minus 5 points and minus 5 for the wrong answer. The first, Sumaya ma'am के लिए question. First I'll read in English, then I'll translate into Urdu. What is the name of the well that appeared for Hajira alayhi salam and her son Ismail alayhi salam? Hajira alayhi salam और उनके बेटे इस्माइल alayhi salam के लिए जो वेल उभर आई थी उसका नाम क्या था? जमजम। So आपके ऑप्शंस के बगैर आपने कहा जमजम is the right answer. 10 points for Sumaya ma'am. Shaista ma'am. Which of these is not one of the name of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
अब जो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे इनमें से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक नाम नहीं है, इन तीनों में से। अल अमीन, अल मुस्तफ़ा, अल खुद्दूस। अल खुद्दूस, अल खुद्दूस is not the name of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam because it is the name of attribute of Allah subhanahu wa ta'ala. So right answer for Shahista ma'am. Next, Sumayya. Sumayya again. We have two Sumayyas here. Sumayya M1 you better mention. Okay. जो अब ऑप्शन दी जा रहे हैं इनमें से कौन सा एक्शन अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है? विच एक्शन इज मोस्ट बिलवेड टू अल्लाह? सलाह, कुरान, उम्रा। इन तीनों में से कौन सी वो चीज़ है जो अल्लाह ताला को बेहद पसंद है? कुरान शरीफ। रॉन्ग आंसर। द क्वेश्चन इज पास्ट। सलाह, नमाज वो ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। सो 5 पॉइंट्स फॉर आपका नाम अर्शिया, 5 पॉइंट्स बोनस पॉइंट्स। अब अर्शिया मैम का क्वेश्चन, अल्लाह अकबर का मतलब क्या है? अल्लाह एक है, अल्लाह बहुत रहीम है, अल्लाह बहुत बड़े ग्रेटेस्ट है, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह, व्हाट डज अल्लाह अकबर मीन? अल्लाह अकबर मीन्स अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। 10 पॉइंट्स फॉर दिस वन। देन आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम हाजिरा मैम। ओके, What does Prophet Musa अलैहि सलाम stick turn into? Prophet Musa अलैहि सलाम की स्टिक किस चीज में तब्दील हो गई? कैमल, बर्ड, स्नेक या सांप? मूसा अलैहि सलाम की स्टिक किस चीज में? स्नेक। स्नेक। आपको थोड़ा लाउड होना होगा। सो स्नेक, इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इस्लाम के मुताबिक वो कौन सी बुक है या स्क्रिप्चर है जिसको प्रॉफिट मूसा अलैहि सलाम पर रिवील की गई थी या उतारी गई थी ना? वो ऑप्शन ज़बूर, तौरात, इंजील। तौरात। तौरात इज द राइट आंसर। तौरात वाज अ स्क्रिप्चर वो विच वाज गिवन टू प्रॉफिट मूसा अलैहि सलाम। अब आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स। आपका नाम नासिया। रहमत मैम के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे? सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे लेकिन एक का नहीं माफ किया जाए। सॉरी, दिस क्वेश्चन, whose sins are forgiven except for death? फर्जदारी के अलावा किसके गुनाह अल्लाह ताला बिना पूछे माफ कर देंगे? आपके ऑप्शंस हैं ओबीडियंट चाइल्ड के, राइटियस स्पॉस जो कि मियाँ बीवी में राइटियस स्पॉस होंगे, या फिर एक शहीद इंसान के। किसके गुनाह अल्लाह ताला बिना पूछताछ के माफ कर देंगे? इताअत गुजार बच्चा। ऑप्शन क्या फिर से रिपीट? ओबीडियंट चाइल्ड, राइटियस स्पॉस, शहीद, मार्टियर, शहादत करने वाले, या फिर राइटियस स्पॉस या फिर ओबीडियंट चाइल्ड। क्विकली, शहीद। शहीद के। मार्टियर सिंस आर गोइंग टू बी फॉरगिवन एक्सेप्ट फॉर डेथ। फर्जदारी के अलावा अगर कोई शहीद है तो अल्लाह ताला बिना कोई पूछताछ किए उनके गुनाह को माफ कर देंगे। What is the name of the camel of Prophet sallallahu alaihi wasallam? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैमल का नाम क्या था? आइबा, बरगा, हसवा। हसवा इज द राइट आंसर। 10 पॉइंट्स फॉर जुनेरा कौसर। जुनेरा कौसर। हसीना मैम। ओके, द नेक्स्ट राउंड क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू आस्क। वन मोर चांस, देन आफ्टरवर्ड्स वी विल हैव अ बजर राउंड। व्हाट शुड बी रिसाइटेड इन तस्बीह फातिमा? तस्बीह फातिमा में क्या पढ़ना चाहिए? ला इलाहा इल्लल्लाह, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। तस्बीह फातिमा में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर का जिक्र किया जाता है। 10 पॉइंट्स फॉर सुमैया मैम। वो लास्ट बुक, व्हाट इज द फाइनल रिवील्ड बुक इन इस्लाम? वो कौन सी लास्ट बुक उतारी गई थी इस्लाम में? तौरात, ज़बूर, कुरान। कुरान मजीद। कुरान इज द लास्ट बुक which was revealed on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 points for Shahista ma'am. Next question for Arshia, Sumayya. Sumayya M1. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lived in Medina for how many years? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam मदीने में कितने साल तक रुके हुए थे?
Options 10, 8, 9. 10. Option 10 is the right answer. 10 points for Sumaya M1. Next, Shahisa. Ashia, sorry. Okay. Dash was an angel who delivered messages to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. वो कौन से फरिश्ते थे जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसेज लाकर दिया करते थे? So Jibreel alayhi salam is the right answer. 10 points for her. हाजिरा मैम, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंडफादर का नाम क्या था? हमजा, अबू तालिब, अब्दुल मुतल्लिब. अब्दुल मुतल्लिब इज द राइट आंसर. वो कौन से नबी थे जिनको मछली निगल गई थी? हजरत अय्यूब अलैहि. Wrong answer. Wrong answer. It is the easiest question, so I am not going to give you the points. So no points for this one. Options: यूनुस अलैहि सलाम, मूसा अलैहि सलाम, दाऊद अलैहि सलाम. वो कौन से नबी थे जिनको मछली ने निगल लिया था? यूनुस अलैहिस्सलाम. हज़रत यूनुस अलैहि सलाम को मछली ने निगल लिया था. So this is 5 points, bonus points. तबस्सुम. So your question. रमजान का महीना है तो ज़कात देना वाजिब है. First I'll say this question in English, then I'll translate. How many categories of people are eligible to receive the zakat? 5, 6, 8. ज़कात के मुस्तहक कितने लोगों को दी जा सकती है? 5, 6, 8. 8 is the right answer. 8 is the right answer. Next, आपका क्वेश्चन. वो कौन सी सूरत है जिसको चैप्टर ऑफ द काउ या बकरी का सबक भी क्या कहा जाता है? सूरह बकरा. सूरह बकरा इज द राइट आंसर. सूरह बकरा वो सूरत है जिसको चैप्टर ऑफ द काउ भी कहा जाता है. सो 10 पॉइंट्स. आपका नाम मैम? जुनेरा. तहसीना. Now first stage we are ending up with. We are going to have the second round. Here you will get a chance, you will get a question, but the person who will buzzer it first will get the chance to say the answer. Okay? Here I am not going to give the options. Ready? You stand here, whether they will ring the bell. Okay, beta Rimsha? Huh? मैम ये जो राउंड है बजर राउंड है. यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा. कोई भी वो बजर आपको फर्स्ट दबाना है. अगर आप दबाएंगे तो आपको चांस दिया जाएगा, या जो कोई भी फर्स्ट प्रेस करेंगे उनको आंसर देने का मौका दिया जाएगा. तो सेम 10 पॉइंट्स. अगर कोई भी दे या ना दे तो -5. रॉन्ग आंसर -5. नो बोनस, नथिंग. ओके, सो फाइन. ओके. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ टाइम में कुरान किस तरह नाजिल किया गया था? कुरान शरीफ थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ. मेरा मतलब ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउ वाज द कुरान ट्रांसमिटेड? नो डाउट कुरान थोड़ा थोड़ा वही लेकर आए. तो किस शक्ल में लेकर आए थे? मतलब आयत की शक्ल में. आयत थी जी, वही की शक्ल थी. वो किस अंदाज से लाकर बयान करते थे? आसमान से लेकर थोड़ा थोड़ा लेकर. ऑप्शंस मैं बोल देती हूँ तो आपको शायद और अंदाजा लग जाएगा. ऑप्शंस: ओरली ओनली, सिर्फ जबान से कहा जाता था, या फिर सिर्फ लिखकर लेकर आते थे, या फिर दोनों लिखकर और ओरली. जबान से बोलते थे. लाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान. मैम जरा मैम क्या ये सब जने बोल रहे हैं? ओके मैम, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लाते हैं तो सिर्फ आयत की शक्ल में लाते हैं. उनको याद करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कहते हैं, वो लिखकर सबको सुनाते हैं. मैम एक मिनट इधर. मैम okay, but here both of them are saying who rang Adi the bell. They rang the bell, so she is gonna get the marks. 10 points for what's your name, ma'am? सुमैया M1. Sumaya M1. Tabassum ma'am. Next.
प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान वो कौन से सहाबा थे जिन्होंने 6 साल की उम्र में इस्लाम को कबूल किया और इस्लाम को मजबूत किया? हाँ, वहाँ भी सुना था, यहाँ भी सुना था माँ। हजरत ज़ैद बिन अरकम। ऑप्शन मैम, ऑप्शन In the 6th year of prophethood, which two men? उर्दू में मैं ना आपको 2 नाम बताना है। हाँ। Which two men? वो 2 सहाबा कौन थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था और उन्होंने उसे फैलाया भी था? Strengthened it. हजरत अली और 6 कम उम्र की इसमें। हजरत अली और नहीं, ऑप्शन ऑप्शंस आई एम नॉट गोना गिव। ये एक और का बोलना है आपको। हजरत अली ये करेक्ट है। और ज़ैद। हजरत अली और हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये 2 सहाबा थे जिन्होंने कम उम्र में इस्लाम को कबूल किया था और उसे बहुत फैलाया हुआ था। सो ओनली 5 पॉइंट्स फॉर शाइस्ता। हजरत हमजा जो चाचा थे उनका नहीं, वाहिद वही एक सहाबी है Here जो options बच्चे- I'll tell you. हजरत अली, हजरत जैद, हजरत अली एंड जैद रज़ी अल्लाह ताला। हजरत अली और या ज़ैद। वही Okay, बताइए। okay, Sorry, हजरत sorry. अली और हजरत अली ज़ैद। एंड जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. So Sumayya Banu from N1 Tabassum ma'am, she is going to get the point. प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में कितने सितारों को देखा था? 11 पहले बजर बताएं। 11 मैम, इधर भी बोले, इधर नहीं ले रहे। ओके, इधर आपका नाम? शाइस्ता मैम। 11 आंसर। So how many stars did Prophet Yusuf alayhi salam see prostrating to him in his dream? It is 11. वो कौन सा गुनाह था जिसको इब्लीस ने किया था, जिसकी वजह से उसे जन्नत से भगा दिया गया था? आदम तकब्बुर। तकब्बुर इज द राइट आंसर। घमंड वो चीज थी जिसकी वजह से इब्लीस अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया था। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को भड़काया था और जो सजदा करने से उसने इनकार किया, तो तकब्बुर की वजह से उसे अल्लाह ताला ने जन्नत से, पैराडाइज से एक्सपेल किया था। ओके, सो दिस पॉइंट 10 मार्क्स पर रहमतुन्निसा मैम। कंफ्यूज देने की किसकी सुन्नत है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मैम इधर नहीं देख रहे, मैं इसका जवाब भी नहीं दिख रहे इधर। सुन्नत है कुर्बानी देना, राइट? It is for शाहिस्ता मैम। सुमैया मैम। ओके, मैम इधर से आया मैम ने पहले। पहला दबाया, शायद फर्स्ट उन्होंने प्रेस किया। 2 क्वेश्चंस आई एम गोना आस्क आउट ऑफ दिस राउंड। इस्लामिक कॉन्सेप्ट के मुताबिक प्यूरिटी और क्लेanलीनेस का दूसरा नाम क्या है? जो क्लेanलीनेस, पाकी सफाई का दूसरा नाम? Rahmatullah. Before yourself, she has gathered. So, what is the name of the Islamic concept of purity and cleanliness? Taharat. पाकी। Rahmatullah, ma'am. She gave the answer. 10 points for her. Last round, last question out of this round. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 दिन रोजा रखने की सुन्नत कौन से दिन है? पीर और जुमेरात। She rang the bell. पीर और So, what are the sunnah days of fasting? It is Monday and Thursday. पीर और जुमेरात। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा रखने के 2 दिन। So we are ending up with this buzzer round. Can we have the marks so that we can have some buzzer and first round total together? You do it and give it to me, ma'am. मैम बहुत मिस हो रहा है ऐसा। एक सवाल सबसे भी ले लो, बेहतर है। सिदरतुल मुंतहा का मतलब क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी मुलाकात अल्लाह से, सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा का मतलब आखिरी जगह, लास्ट स्टेज। farthest boundary, last आखिरी स्टेज। ओके,
So it is the right answer. Okay, ma'am. Sidratul Muntaha. What is the meaning of Sidratul Muntaha? It is a tree of the farthest boundary. जो आखिर का ये है. Okay.